प्लीज़ जितने तादाद में यहाँ लोग हैं मोबाइल फ़ोन्स भी वैसे ही बजेंगे, राइट? सो प्लीज़ टर्न देम ऑफ और पुट देम ऑन साइलेंट because it's really, just egregious. It gets really irritating. Too much of noise, so we don't want that. Now, I'll quickly introduce Paracha Sahab. We all know him. इतने तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन we'll do the honors and he will take it on from there. Nadeem F. Paracha is a cultural critic, satirist, and well-known columnist at Pakistan's largest English language daily, Dawn. He is also a columnist for the official German media group Deutsche Welle. I hope I have pronounced that properly. I really don't know German, but that shortly stands for DW. And Paracha was born and raised in Karachi and has written extensively on a wide range of political and cultural topics, especially those related to South Asia. His first book on Pakistan's social history will be published in February 2016. That is within this month, so you'll be looking forward to that. I'll hand over to Paracha Sahab, and I hope you have a great time. Thank you. Yeah. ओ यार हम भी तो बैठे हुए हैं ना, हम भी तो पैदा हुए हैं, हमें भी तो पता है यार. मैं करूँगा ना. हाँ ये करेगा. Hello. Okay, this session is about a very dangerous weapon called humor. And I've got two top guns to deliver this weapon. One is from Pakistan but lives in New York and is most certainly a CIA operative. I left my badge at home, but just imagine. The other one is from India who got the visa. Yay! So let's hear it for them. Saad Harun and Sanjay. Okay, the session is called Laughter the Best Medicine. I didn't come up with this, believe me. I didn't. But my question is going to be with Saad first. Saad, how do you see it? As a weapon or as a medicine? Well, honestly, when I thought about it, I think that they say laughter is the best medicine, and if we're honest, no, antibiotics are the best medicine. If you're really true about it, and but as laughter is, at least I get to tell my parents I went to med school. If laughter is the best medicine, there's one of those things that definitely applies. For me, laughter is something that can evoke different emotions. It can evoke. Hopefully laughter as it is, as happiness, but also it can make you think about sadness, anger, and there's undertones to all the laughter that you have in your life. Thank you. Acha, Sanjay? जी. This is about humor. So my question is going to be, would you like to share with us the visa process that you're going through? Yeah. सर मैंने तो एक गाने में लिखा भी था जिसकी आपने बहुत बुराई करी थी. पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए सर. मैंने आपसे नहीं, आजकल क्या है ना, हमारे मुल्कों में जहालत इतनी है ना कि ट्विटर और आ गया हमारे पास, तो उसमें ना हर एक को हक है, वो कुछ भी बोल देता है किसी को. तो मैंने भी नदीम साहब को बहुत कुछ बोल दिया था, लेकिन मैंने इनको अपोलोजाइज भी किया था पब्लिकली. उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सर. पहली बात. Wait, what did he say to you exactly? This is now we want to know. What did he say to you? नहीं, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता था इनकी किसी बात से, बट दैट्स ओके, मतलब यू कैन डिसएग्री, बट द टोन आई यूज वाज नॉट, आई एम नॉट प्राउड ऑफ दैट, बट देन अगेन आई अपोलोजाइज सर. और वीज़ा की आपने जहाँ तक बात करी, तो हमने तो गाने में लिखा भी था सर कि हमारे यहाँ बॉम्ब गिराना आसान है पर वीज़ा मिलना मुश्किल है. और मुझे तो समझ नहीं आया ना कि हमने खेर साहब को बुलाया ही क्यों था यार. मैंने तो प्लान बना लेते अपने दोस्तों के साथ, इधर आए तो 2-4 कुटापे यहीं रख दे उसके. हम आए ही नहीं, फिर लास्ट में फिर मिला ही नहीं अपना वीज़ा. Okay. Anyway. since संजय ने बात की है about Twitter and Facebook and all that, एक और चीज़ मैंने देखी है, नोटिस की है कि whenever कोई satirical piece is put out, majority of people, especially in India and Pakistan, उसको serious ले लेते हैं. Yes. Like for example, 2-3 साल पहले मलाला पे एक पीस मैंने किया था, तो वो बहुत लोगों ने सीरियस ले लिया. अभी वो जो खैर साहब हैं उन पे एक ट्विटर किया, तो वो इंडिया में बहुत लोग नाराज़ हो गए. तो ये साद एंड संजय,
टेल मी ये क्या मसला कि क्यों हो रहा है? Yeah, when it comes to satire, I think that as a culture, we kind of struggle with it. And I do a little bit of this in my stand-up as well. I do a little bit of this as a joke where I wrote this song called Burqa Woman, which was a parody of Pretty Woman. You know, have you heard the song Pretty Woman? It was a parody of Pretty Woman. So it was very basic. It was just kind of talking about the burqa. So it went like, Burqa Woman, in your black sheet, Burqa Woman, with your sexy feet, Burqa Woman. My love for you, it grows every time I see your nose. So I did this whole kind of satirical song on it, you know, and then that was the first video I actually put online, and then it went viral. So, and I wasn't prepared for that. It went viral. It got hundreds of thousands of hits. And then the bit I do in my stand-up is that the video got hundreds of thousands of hits, but the people also wanted to hit me hundreds of thousands of times. You know, because you look at the comments under the video and it's unbelievable. I'm sure that Sanjay knows this. Like when you see those comments under YouTube, you realize that, oh my God, there's more videos about cats in the world because they should run the planet. You know, humans shouldn't run this planet when you look at those comments. And नो आपने बिल्कुल सही फरमाया जी कि कोई भी वीडियो लगा दें आप, इंडियन लगा दें या पाकिस्तान लगा दें, नीचे जंग होने लग जाती है. किसी ने मतलब एक बच्चे का वीडियो लगा दिया क्यूट बेबी करके, तो उसमें भी नीचे कोई लिख देता है आई हेट बेबीज, यू फकिंग पाकी, यू फकिंग इंडियन, यू सक, वो सक, ये सक, पता नहीं क्या. जैसे ना हमारे यहाँ ना एक कहावत है मेरे गांव में कि बंदर के हाथ में उस्तरा. तो वो ना टेक्नोलॉजी इन आवर पीपल्स हैंड, बिकॉज वी डोंट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर. कल भी यहाँ पे एक मैडम लड़ने लग गई मेरे से यार. मैं नीचे मजाक कर रहा था और मैं सीधी सी बात करता कि वी हैव टू री एग्जामिन आवर हीरोज. एक मैडम बुरा मार के, नहीं सबको री एग्जामिन कर लेंगे, कायदे आज़म के बारे में कुछ नहीं बोलोगे. मैंने कहा यार कायदे आज़म से भी पूछ लो, वो शायद चाहते हो री एग्जामिन होना, क्योंकि इट्स हाई टाइम. मैं तो खाली ये बोल रहा था कि मुसलमानों के लिए मुल्क बनाता, डिसाइड तो कर लो मुसलमान है कौन. 70 साल हो गए यार. अगर इंडिया एक ही रहता तो फिर एक ही लड़ाई होती हिंदू मुसलमान है. अब तो 50 लड़ाइयाँ चल रही हैं यार. कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई हज़ारा है, कोई अहमदी है. कोई नदीम भी है. Okay, Sanjay and Saad, whenever Pakistanis stand-ups like you, whenever they go to the Western society to perform, they're expected to sort of address a lot of perceptions the West has about Muslims, right? So majority of Muslim stand-ups eventually end up doing acts which Yes. which have to do with this perception. Terrorism and everything. Yeah. And I wanted to ask Sanjay, आप जब करते हैं वेस्टर्न ऑडियंस के लिए, इंडियन जो होता है, ठीक है, हिंदू सिख व्हाटएवर, उस पे कोई इस तरह के प्रेशर्स होते हैं कि वो एक्सप्लेन करें इंडियंस के बारे में क्या परसेप्शन है? सर मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को इंडियंस और पाकिस्तानी को कैमल जॉकी बुलाते हैं अमेरिका में ना, कैमल जॉकी बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम गधे घोड़े चलाते हैं यहाँ पे कहीं कुछ. और मैंने हमेशा ये सोचा है कि आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट आई एम नॉट देयर टू एंटरटेन द ऑडियंस इज देयर टू एंटरटेन मी. Okay. सो No pressure. Okay. No pressure, guys. नहीं तो उनका परसेप्शन है. अगर देखें, पहली बात तो ये कि जो लोग पैसा खर्च करके हंसने आ रहा है उस पर तो वैसे ही लानत है. अच्छा. कि आप 300 रुपये का टिकट खरीदने आ रहे हैं कि हम हंसने जा रहे हैं, यार लानत है तुम्हारी जिंदगी पे यार. तो उनकी परवाह मैं तो नहीं करता कि उन्हें क्या, मैं वो बोलता हूँ जो मुझे बोलना है. और सर इंडिया में भी पाकिस्तान में बहुत परफॉर्म किया है, अमेरिका में किया है, नेपाल में तो नवाज शरीफ और मोदी के सामने किया था. उनको कान पे जू नहीं रहेगी. अच्छा. उनके सामने में बाल नहीं है ना. हाँ नहीं, और बाल हैं तो गलत जगह है. I don't think as a performer, especially stand-up comedy, as a performer in our societies, the performer should have that arrogance. Okay, you bloody listen to me because I have the mic, I have the stage, and with that privilege comes the responsibility कि आप फिर बोल क्या रहे हैं.
तो ये हमारे यहाँ भी नया नया शुरू हो रहा है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी बातें भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत गंद भी कर रहे हैं, बकवास भी कर रहे हैं। और हमारे तो फिल्म बनी थी सर, अब आपने जो सवाल किया ना उसी पे, हमारे फिल्म बनी थी माई नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। जी जी जी। Yeah. तो क्यों क्यों बोल रहे हो इस तरीके से यार? फिर जाके शोर मचाते हैं कि भी हम अमेरिका में Definitely. फिल्म I've seen his movies. He is a terrorist. है ना? I've seen the acting. We're held hostage for 3 hours. But no, I do agree with Sanjay as well. But a lot of times that when we do travel, you end up becoming, because you are a Pakistani comedian or Indian comedian, there's not that many of us. So you end up becoming like an ambassador. So I remember that I went to this, I was performing at this comedy show a few months ago abroad. And it was mainly a white audience. So this guy came up to me, and this was after the France attacks. So he came up to me after the show. He's like, Saad, you're a Muslim, and the terrorists are Muslim. Do you condemn this attack? I said, excuse me, you're an asshole, and the terrorists are assholes. You're more closely linked to them than I will ever be. So, you gotta have your own narrative of what's going on and take it forward. And obviously people will say things, but we get to do it in a comedic format where, you know, if you don't like what the audience is saying, we can disagree with them. And then they cannot buy a ticket and we'll cry alone at home under a blanket. But that's different. You don't have to know about that. By definition, you know, comedy by definition has to offend someone. आपको किसी ना किसी को बुरा लगना चाहिए, अगर बुरा नहीं लग रहा है तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। तो मैंने तो कल अपना ठीक से कर दिया। एंड सोसाइटी लाइक आर्स, नदीम साहब, हम लोग तो अगर पड़ोसी की लड़की किसी और से इश्क चला ले तो हम उससे बुरा मान जाते हैं, तो हम तो कॉमेडी से क्यों नहीं करेंगे? और साथ साहब ने बोला ना कि वी आर नॉट स्टैंड अप कॉमेडी इज न्यू, वी आर नॉट टू मैनी। हमारे यहाँ यार हमारे सियासतदान देखो, आपकी फौज देखो, तो हमें तो कॉमेडी भरी पड़ी है यार, इसी से निकल रहे हैं ना। मुझे हमने अपने गाने में भी बोला था ना कि बॉम्ब गिराना आसान है, वीज़ा मिलना मुश्किल। उसके बाद हमने बोला था कि वहाँ रात और दिन नेता मारे, यहाँ फौज का बम्बू रहता है, बस 2 फैमिली की चांदी है, यहाँ भुट्टो है, वहाँ गांधी है। हाँ। तो कॉमेडी भरी पड़ी है जी। कल परसों तरसों मेरे से कोई पूछा था बहुत इंटरेस्टिंगली, पूरी सभा में वन गाय स्टूड अप एंड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन दैट इफ राजीव गांधी वाज अलाइव टुडे, मैं तो वहीं गिर गया हंसते हंसते, तो वो बिलावल भुट्टो को मिलके क्या बोलता? ये सवाल उनके जहन में आया। तो मैंने कहा जी जब राजीव गांधी को जिंदा कर रहे हो तो बेनजीर को भी कर ही लो फिर। तो राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो हाई फाइव करते कि बच्चे हमारे एक जैसी हैं जी। तो हमारे यहाँ तो सर साथ साथ ह्यूमर सर भरा ही पड़ा है, तो बस वो उठा के बोलना है उसको खाली। Absolutely. And most of our humor is about politics and everything like that. Every time I do a show, they ask me that, you know, where are the political jokes? When are you going to make fun of him? Where's the Sharif joke? Where's the... well, and Nadeem knows more about this than anyone, so... Okay, no, I just wanted to ask you guys, संजय आप बताएं मुझे, आजकल जो इंडिया में environment है, मैं तो वहाँ नहीं गया ना, मुझे I think अभी जाने देंगे, but नहीं सर आपके यहाँ से तो यूं ही आ जाते हैं, क्या बात आ जाते हैं आने भी देते हैं, आने भी देते हैं। अच्छा, तो वहाँ क्या सिचुएशन है? जैसे आपने जो गाना बनाया था उसका रिएक्शन इंडिया में क्या था? सर गाना इंडिया से ज़्यादा रिएक्शन तो पाकिस्तान में मिला था। वो तभी मेरे ख्याल से वो मेजर साहब ने वो लिख दिया था उसका जवाब। It's just like Dawn newspaper. The articles for Pakistan, but the comments are all Indian underneath, I think. A lot of Indian. Yeah. Yeah, and the thing is, what is happening in India is, I'm not surprised, you know, because this is what actually we are. When we, when we thump our chest and shout, पूरी दुनिया में हम चिल्लाते हैं ना कि we are the largest democracy in the world. तो largest democracy ने जो किया है उसको भी तो ownership लो ना, कि जो हमने किया है ये हमने इलेक्शन करके जो चूज किया है ये ओनरशिप हमारी है। हमें देखो डेमोक्रेसी क्या है जी, कि इंडिया बेवकूफ़ था, उन्होंने सोचा हम डेमोक्रेसी कर सकते हैं, हमने करने की, पाकिस्तान बड़ा स्मार्ट था। Thank you, we agree. उनको पता था डेमोक्रेसी का हमसे कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने गेम ही नहीं खेला। But you are right, Nadeem Saab. The fact that I like about India is, I'm not a nationalist or a patriot, or I don't believe in the idea of nations. I believe in societies and people. The fact that in India right now, people are out on streets protesting. I think any society that gives a right to protest is an evolved society, or in the process of evolution. And trust me, we are protesting. Even the trip to Karachi is a protest.
क्योंकि वहाँ पे अनुपम खेर शोर मचा रहा था, और उसमें भी आपको पता है ना नदीम साहब, पाकिस्तान हाई कमीशन कितना अच्छा गेम खेला। पाकिस्तान हाई कमीशन ने इनको ऑर्गेनाइजर्स को फ़ोन करके बोला कि यार इसको बोलो अप्लाई ना करें, हम देंगे नहीं। अच्छा। और उसके बाद उसने बंदे ने अप्लाई नहीं किया, उसने शोर मचा दिया वहाँ पे कि यार मेरे को वीज़ा नहीं दे रहे, मैं तो अमन की बात करने जाता। मैं कह रहा हूँ अमन की बात करने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के कर सकते हो। जब 4 दिन हो गए, 4 दिन के बाद जब पता चल गया अब इसको वीज़ा दे भी दें तो ये जा नहीं पाएगा, तब उसको हाई कमीशन अब्दुल बासित साहब फ़ोन करके बोल रहे हैं अनुपम खेर को, यार आप तो इतने बड़े कलाकार हो, अदाकार हो, आपको तो हम देते, आप आओ तो अप्लाई तो करते यार कम से कम। तो ये शरारत जो हम करते हैं ना एक दूसरे के साथ, बहुत मज़ेदार है। जैसे कभी पठानकोट हो गया, कभी जो बम्बई हो गया, ये शरारतें जो है ये कॉमेडी है सर। जी जी। सर मैं आपको दे तो दूंगा कश्मीर, बदले में क्या दोगे सर? प्यार। Okay. What we are coming to. What we are going to do is I'm going to sort of get in the audience early in the piece, so they can help me moderate this. Okay. Can we have a microphone out there so they can start asking questions, not speeches, please? सहर करनी है। कश्मीर दे कल था भाई, चले स्टार्ट करें। Mike. We have more comedians than us in the audience. Yeah, Mike is the Just jump in, man. Hi, hello. And guys, remember this is a conversation about comedy. We're not experts at all. So let's नहीं सर, साथ साथ बोले हम एक्सपर्ट हैं, हमारे You're an expert. हमारे यहाँ सब एक्सपर्ट ही मानते हैं अपने आप को, तो हम भी मान लेते हैं यार। अच्छा, ठीक है। किस मसले पे बात करनी करें अच्छा। आप। Sorry. जी, please ask. हाँ, नदीम आपसे ये सवाल था कि आपने ऑफ लेट बहुत सीरियस हो गए। यू हैव रिटन अंडर द बेल्ट ब्रिलियंट स्टफ। What's happened to you? Why have you turned so stoic? You to me was the epitome The moderator of meets some... the Terminator, it looks like. और आप दोनों से साथ I've heard you. No, but I want to answer on his behalf, because sometimes comedy isn't pretty. Sometimes comedy is dark and it's ugly, satire, and that's what. Yeah. Satire, wit. What's happened to him? इतना सीरियस क्यों हो गया ये? He's और no, but he's, in his writings. इनको He'll इश्क हो गया answer लग रहा है, that. तो सीरियस Yeah. हो और गए। या sobering, I don't he's know. moderated too many panels. He's gotten bitter about it. और राजीव, आपका अंडरलाइन जो हमारे खानदान का भी एक इल्लत है, जिसे कहते हैं एक डिजीज़ है, गालियाँ, और बहुत मुगल्लिज़ात और बहुत स्मूथ और बहुत प्यार से। तो आपको वो हिंड्रेंस मिल रहा है क्योंकि यू आर सप्रेसिंग योर फुल सेंटेंस। सो वो आप खुल के अपना स्टाइल आपका वही है। देखिए मैं 4 लेटर 3 लेटर उर्दू के, जी, हिंदी के मैं कभी नहीं करता आप स्टेज पे, नहीं है? नहीं अच्छा। करता। और दूसरी बात ये है कि किसी के बाप में दम नहीं है कि मेरे को बोलने से रोक सके। नदीम बोलो ना, क्या हुआ? मैं सीरियस हो गया हूँ। हाँ, seriously. आपके बाप को ये पता है? मैं कह रहा हूँ, आपके बाप को ये पता है? नेक्स्ट। नदीम साहब, सॉरी, कराची की सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये पानी आप लोगों के सामने है, इस पे ये नहीं लिखा हुआ है कि इट इज़ अ न्यू एंड रिफाइंड फार्मूला ऑफ वाटर। आई डिडंट गेट दैट। पानी? जी हाँ, क्योंकि बाहर जो पानी होता है ना मिनरल वाटर, इस पे लिखा होता है न्यू एंड रिफाइंड फार्मूला ऑफ वाटर। अच्छा, तो चलें। What's the question? I still didn't get it. क्वेश्चन इज के पानी का फार्मूला तो सेम है, लेकिन ये कि इस पानी के ऊपर भी ये कमर्शियल वाले लिखते हैं कि न्यू एंड रिफाइंड फार्मूला। अच्छा, मैंने नोटिस नहीं किया। चल नेक्स्ट जी। You talked about assholes and terrorists. Do terrorists know what assholes are? Wow, we have some really smart questions today in the audience. Next time, try and ask them in a language we all understand.
पराचा साहब, मेरा नाम शिराज है, मैं एक चैनल से वाबस्ता हूँ। मेरी एक सिर्फ रिक्वेस्ट है सर, मैं आपका बहुत पुराना पढ़ने वाला हूँ, आप ऊपर लिख दिया करें अपने कॉलम पे कि ये सटायर है या रियल है, क्योंकि अभी कुछ अर्से पहले आपने लिखा था वो अननोन वॉर ऑफ 1975, उससे पहले आप तारीख के बारे में इतना कुछ लिख चुके थे कि मैं वाकई सीरियसली उसको पढ़ना शुरू किया। नहीं, एक्चुअली डॉन वालों ने करना शुरू कर दिया है, बट मसला सिर्फ ये दैट इट डिफीट्स द पर्पस। सैटायर जो होता है ना, वो इट्स सपोज टू लुक लाइक समथिंग रियल, बिकॉज में रियल चीज़ें होती हैं, बट आप वो रिएक्शन ऐसे आते हैं कि उस बेचारे डॉन वालों को एक डिस्क्लेमर डालना पड़ता है। Nadeem Saab, you should write new formula on your new formula parody satire on your forehead. Water. And that's what it should be. Okay, next. हेलो, थैंक यू। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ, देखिए कोई भी परफॉर्मर होता है वो अपने ऑडियंस की सेंसिटिविटीज़ के मुताबिक बात करता है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगी, एक होता है पॉलिश, एक होता है अनपॉलिश। मिसाल के तौर पे गालियों की बात आई उधर से, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में हर जगह रस्म है कि ख़वातीन के सामने गालियाँ नहीं दी जाती, यानी ऑडियंस का इंतखाब हो गया। मिसाल आपको मैं ये दे रही थी कि एक अंग्रेज़ कमेडियन ने एक प्रेजेंट किया, मिसेस गोल्डा मेयर उस ज़माने में रोम गई थी पोप से मिलने के लिए। उसने ये कहा, शी हैज़ गॉन देयर टू गिव ए बिल फॉर द लास्ट सपर। मिसेस गोल्डा मेयर के बारे में बात नहीं थी, एक जनरल बात थी। आप समझते तो होंगे ना कि लास्ट सपर में क्या हुआ। जी, तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो कॉमेडी होती है, अगर उसको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना है तो उस पॉलिश और टेस्ट और ऑडियंस के मुताबिक है। तो मैं आपसे, मेरे सवाल आपसे ये था कि आप उसको किस तरह सेलेक्ट करते हैं कि किस ऑडियंस के सामने क्या बात की जाए। थैंक यू। जी, मैं नदीम साहब, मैं जवाब दूँ इसका। देखिए, जो मैं खुद इसके खिलाफ हूँ कि आप स्टेज पे या कहीं पे भी आप गालियाँ बकें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अब्यूज इन आवर सोसाइटीज आर एंटी विमेन। बट मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि खवातीन के सामने गाली नहीं देनी, क्योंकि आप इमीडिएटली ना सेग्रीगेशन करने लग जाते हो कि ये औरतें हैं, ये आदमी हैं। औरतों के सामने ये हो सकता है, आदमी के सामने नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि मैं, मतलब सबका अलग अलग मिजाज होता है। मेरा मिजाज ये है कि मैं कभी भी अपने कंटेंट को या कभी भी अपनी ज़बान को या बात को इस बात से नहीं बांधता कि सामने वाले ने सुनना क्या है, क्योंकि तवायफ में और मेरे में फ़र्क है। अब देखो, ये बात कहने में नहीं, ये बात कहने में अगर मैं तवायफ वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं, इसका मतलब ये हमारा जो हमारी अक्ल इस तरीके है ना कि हम उसको डेरोगेटरी तरीके से ले रहे हैं, है ना। और ये इस तरह से हम बहुत सारी बातें करते चले जाते हैं, बट मेरे ख्याल से तवायफ की मेरे से ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए। तो बट ये है कि आपने अपना कंटेंट कैसे चेंज करना है, किसके हिसाब से चेंज करना है, ये मेरे को तो ऑडियंस नहीं डिटरमाइन। हाँ, ये बात है कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के निगर्स की बात करने लग जाऊँ, हैं, या फिर मैं यहाँ बैठ के मतलब RSS की बात करने लग जाऊँ, जो आपको समझ ही नहीं आएगी। गुस्सा तो आएगा आपको, मज़े भी आएंगे, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगी। तो फिर वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बट अल्टीमेटली स्टेज is your voice and you are on stage for a reason, because you are angry about something, you want to say something and you want people to listen to it। क्योंकि हमारे इतनी जहालत होती है, थप्पड़ तो मार नहीं सकते सबको जाके ना यार, हंस ही सकते हो लोगों के ऊपर। जी, it also depends on if it's in the context of the joke. Like the joke I just told before, I used the word asshole in it, and it's not a word that usually you would, but it was because of the context of the joke. It's because of what happened. It was a real life thing. So it depends, like how much do you censor yourself? How deep do you go inside to kind of there's other jokes that I do. I don't even know if I should do them here. Should I do another? Like, okay, fine. We're all adults. We're all adults here. We're all adults here. So, and this is, madam, I understand that you are a Buzurg log. So I want to, actually tackle this the right way. But we all know that there's a lot of crime in Karachi. And once my cell phone was stolen, so I wrote a bit about exactly what happened. So I was outside the Karachi Thana in my car, and I was using my cell phone. And this guy jumped off this motorcycle. And he had a gun in his hand, and he started banging on my window with the TT, and he said, "Gandu mobile." Gandu mobile. And I didn't know if he wanted a relationship with my phone. I was very confused. But, I mean, and I would never use that word unless it was within the context of this joke. So you understand that if there's not a reason to use that word, it's not used. Yeah. And I think, so that's I it, think yeah. the story that Saad just told is actually real humor. I mean, real humor is not manufactured.
इट हैपन्स अराउंड यू एंड यू जस्ट हैव टू, एंड जो इन्होंने दास्तान बताई, मुझे भी बहुत लोग आके बोलते हैं यहाँ पे कराची में मोबाइल का मसला है, मोबाइल का मसला है, तो मुझे समझ नहीं आया कौन सा मसला मोबाइल का। तो बाद में मेरे को पता चला कि गाड़ी कहीं पर रुक जाती है तो लोग डर के मारे यूँ बैठे रहते हैं और एक नकली मोबाइल लेके चलते हैं कि ये दे देते हैं उसको। But this is the real story. This is a guy living in Karachi who got mugged and he's telling that story. That is real humor, rather than sitting down and making jokes about things that you have not experienced. जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, नदीम साहब, हमारे हिंदुस्तान में बड़ी डिबेट चल रही है कि टॉलरेंट सोसाइटी नहीं है जी हमारी, कि टॉलरेंस नहीं है इंडिया में। ये अनुपम खेर ने ही खूब करा है कि टॉलरेंट नहीं है। What do you think about Anupam Kher? Be honest. What do you think about him? I think that India and Pakistan, we were never tolerant here. He's We right. are the most intolerant, most racist society. आज तक हमें ये भी पता नहीं, ये भी सीख नहीं पाए हम कि लाल बत्ती पे रुकना चाहिए, किसी को रिश्वत नहीं देनी चाहिए, औरतों की इज्जत करनी चाहिए, ये हमें पता ही नहीं है। तो हम इंटॉलरेंट हैं। Race, religion, skin color, you name it, we will, sex, you name it, we will justify a reason to hate you. That's also what it ना is. सर, वो डिबेट चल रही थी ना इंडिया में कि टॉलरेंट नहीं है, टॉलरेंट। आमिर खान ने चाय पीते पीते अपनी बीवी को बोल दिया कि यार, उसकी बीवी ने बोल दिया कि यार यहाँ पे नहीं रहना है, उसने बाहर निकल के बोल दिया, बोलते रहते हैं यार, तो उसके पीछे ही पड़ गए लोग कि यार, और लोग क्या, मतलब आरएसएस वाले पीछे पड़ गए, शिवसेना वाले, कि ये क्या बोल दिया इसने, इंडिया टॉलरेंट है। बोल इंडिया टॉलरेंट है, वरना तेरे चमाट मारेंगे हम। तुम वापस जाके ये बोलो ना, तुम इधर बोल रहे हो। How can you say these things in India? मैं बोलता हूँ सर, मैं आपको इसी का बताता हूँ कि इंडिया में मैं बोलता हूँ जी, मैं बोलता हूँ कि किसने बोला कि यार हम लोग टॉलरेंट नहीं है, हम तो माफ कर देते हैं सबको। हम इतना बड़ा दिल है हमारा, हम सबको माफ कर देते हैं। हमने सलमान खान ने 2002 में बंदे मारे थे गाड़ी के नीचे, हमने उसको माफ कर दिया। और सलमान खान को छोड़ो जी, 2002 में जिसने बंदे मारे थे इंडिया में, हमने उन सबको माफ कर दिया, प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया एक को। और कौन है जो ये बोलता है कि इंडिया का सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है? क्योंकि मैं बोलता हूं हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना विकेड है, आपको तो हमसे भी ज्यादा है, मैं अपना बता देता हूं। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना विकेड है कि हमने याकूब मेमन को उसके बर्थडे पे फांसी दी, और उससे पहली वाली रात को केक भी काटा था, बोला था हैप्पी बर्थडे, हैव अ ग्रेट वन। कहीं और नहीं होगा ये, तो बोलते हैं हम तो जेल जाने वाले। चलो, हमने भी अदनान समीर खान को माफ कर दिया सर। वो Okay, so, yeah, there's some guy there. Okay, yeah, sure. My name is Ali Abbas. My question is with Sanjay and Saad, that comedians का काम होता है कि वो stereotypes को bust करें. Do you guys come up as a stand-up comedian? Is it impromptu? Yeah, you guys come up with a story to tell. Is there a message in it, or it's just stand-up and you make people laugh? My question is that. It's actually it's both things. Firstly, sometimes you have something you want to talk about as a message. A lot of times, for me, and it depends on the comedian. Sometimes, like I feel that there's a lack of laughter in society by and large. By and large, we don't laugh enough. We're not happy enough. For a lot of times, for me, the idea comes down to it that yes, I'm a comedian, but I want to see people laugh because our lives are very limited. And the more time you spend laughing within that time of your life, the better a life it is spent. Some things you will change, some you can't. But because I can't do much. Like I'm not a politician. I'm not a social worker. I don't do these things. But if I can add that little bit of laughter to your life, I can make it that little bit better. Then I've done my job. That's what it is. मैं मतलब I'm really envious of people like साद। मतलब ये इतने talented हैं, मेरे में वो टैलेंट नहीं है जी कि मैं हंसाने के लिए जाऊँ। कई दफ़ा मैं ना इन लोगों का काम देखता हूँ, बड़ी कदर होती है कि लोग बैठते हैं टू आंसर ये क्वेश्चन कि मुझे, जैसे इन्होंने बोला कि हंसना बहुत ज़रूरी है। मेरे को तो सर नहीं लगता कि मतलब वो मेरे में टैलेंट नहीं है वो कि मैं बैठ के हंसी। भाई आपके पास बहुत टैलेंट है, आप बहुत ज़्यादा लेते हैं। नहीं, वो तो हम इंडियन है ना, तो इसलिए तो हमारे में। अच्छा, आप मगर मैं इस धंधे में इसलिए आया था जी कि मेरे को किसी को हंसाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा बड़ा ही वायलेंट सा चाइल्डहुड रहा है, बहुत ही ज़्यादा कास्टिस्ट सोसाइटी में मैं बड़ा हुआ हूँ। जाट हूँ मैं, यूपी का, जहाँ पे पूरा इंडिया का तालिबान है जी हम बेसिकली। तो मेरे को तो मैं स्टेज पे सिर्फ अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए गया था, मेरे लिए कथारसिस है। लेकिन बाद में लोग बोलने लगे ये फनी है, तो मैंने कहा फिर पैसे दो। Oh, that was good. Ansari and T2F. Hello. Hi, hello.
Okay. Hi, Acha, this is Susha. Hi, how are you? Haven't seen you since yesterday, no, huh? I don't. Acha, anyway, I would like to know how would you like to be perceived as a Pakistani comic or an Indian comic or just as a comedian? Wouldn't you rather be a comedian and not be a terrorist sort of? just Oh talk yeah. about- How would you want to be seen? I think that that's the. Both of you. I don't think we have power over that. I feel that other people see us a certain way, and then I mean, obviously you have. I think that deep down inside, you have every comedian. You have this little thing that you want to be like a rock star, an artist, because you see like people on being rock stars on stage. You don't get that. You don't get people. Nobody's throwing underwears at you on stage. No one's doing that stuff. You know, it's not that. And you just want to be an artist. You want to be known, because at the end of the day, we spend 99.99999% of our time writing. Excuse me. Kashmir is yours. Okay, I'm sorry. We didn't mean to do. We didn't mean to do that. It's okay. So I mean, we're writers. So I think I don't know if Sanjay agrees, but we want to be seen as artists at the end of the day. But he has his own नहीं opinion. मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ इसमें, मतलब ये नहीं कि मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ कि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ जी। मुझे नहीं लगता कि मेरे में वो काबिलियत है कि मैं बैठ के लिखूँ। मैं लिखता हूँ, लेकिन अलग मसलों में, कॉमेडी के बारे में मैंने कभी नहीं लिखा। ये लोग कैसे परसीव कर रहे हैं, इस पर तो मेरा कोई, जैसे साध ने बोला, बहुत सही बोला, इस पर तो हमारा कोई वो ही नहीं है कि कौन कैसे समझ रहा है आपको। लेकिन अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं आ रही ना, तो भाड़ में जाए। एंड द सेकंड थिंग इज कि जो साथ की वो जैसे मोबाइल वाली स्टोरी है ना, इस तरह की स्टोरीज हमारे यहाँ इतनी हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो कहानी लोगों को सुनाऊँ कि किसी को तो शर्म आए थोड़ी सी यार, किसी को तो अकल है, लेकिन मेरे को तो 6-7 साल हो गए हैं, आज तक किसी को शर्म नहीं आई है जी। तो हम हैं ही ऐसे। कहने का मतलब ये है कि इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ टैलेंट टू बी अ राइटर। मैं तो क्या है भैया, क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है। हाँ जी, अब क्या पता, आप मेरी जगह सूंघ भी रहे हो। What is your problem, sir? He is a guest in our country. Let's show him a little welcome and a little respect. Thank you so much. Thank you. You know, नदीम, तुम शर्म करो। वो भी तालियां बजा रहे हैं। अच्छा ठीक, नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट, सॉरी, मैं खाली एक चीज और कहना चाहता था, नदीम साहब, साथ मैं खाली एक चीज बोलना चाहता था कि जो ये लगी ना यूट्यूब पे, तो मेरे को यहीं रख लेना फिर। अरे आप आ जाए ना, मैं क्या, अरे आए तो सही, आप देखें ना फिर। मैं एक चीज मैं और कहना चाहता था कि जो ये पॉलिटिक्स की बात है ना, कि जैसे अभी आपने पूछा कि हाउ डू यू वांट पीपल टू परसीव यू एज अ पॉलिटिकल, ये, और जैसे साथ ने बोला कि ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन और अ सोशल एक्टिविस्ट। आई पर्सनली थिंक दैट ऑल ऑफ अस हैव अ पॉलिटिक्स एंड वी लिव विद दैट, वी स्पीक दैट, वी राइट दैट। नदीम साहब इतना बेहतरीन लिखते हैं, इनकी पॉलिटिक्स है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आपने अपनी पॉलिटिक्स चूज नहीं करी ना, तो पॉलिटिक्स विल चूज यू एंड देन यू विल हैव टू लिव विद दैट। Thank you, Sanjay. Let's have some more questions. Where has the mic reached? Hello, we can't hear you. Can you see if it's on? Next, you can. Okay. Hello. Yeah. Does laughter produce any chemical changes in the brain which makes it the best medicine? You want me to answer that? Does laughter produce any chemical changes in the brain? The medicine. Yeah, my parents think so. I went You've crazy. been foxed. सर पता है, अगर हंसने के लिए आप केमिकल रिएक्शन तक पे पहुंच गए कि इसमें क्या, कौन सा कंपाउंड ब्रेक कर रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट बॉन्ड है या कौन सा बॉन्ड है, फिर आपको हंसी आएगी नहीं। You know, it's like sex. जितना आप उसको डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हो ना, आप टर्न ऑफ होते रहते हो। So just enjoy. Okay. Yes. एक सवाल है, बल्कि एक फरमाइश है। इसी वक्त अगर साद और संजय
एक स्टैंड अप कॉमेडी हमारे लिए 5 मिनट की करें। कुछ ऐसे जोक्स जो आप यूजुअली करते रहते हैं लेकिन बैकफायर करें एक दूसरे को, तो बहुत मजा आ जाएगा। This is sit down moment away from stand up. Sanjay is performing over here. I'm performing tomorrow as well, so we don't want to take you away from that. अरे साथ सब कर देते ना, पैसे कितने दे रहे हो आप? हाँ, पैसे कितने दोगे? ये तो फ्री में। हाँ, ये सही बात है। पैसे कितने दोगे? क्या क्या इधर आ जाओ। पैसे तालियों में देंगे। हाँ, पैसे तालियों में। वो हम देख लेते हैं। सर जब कराची में कोई इधर बुलाता है ना, ऐसे बुलाता है कि इधर आ जाओ, तो पता है क्या करने वाला है वो। अच्छा, जरा जोर से बोल दीजिए प्लीज। जी जी जी, आ रही है जी। मेरा नाम मोहम्मद अमास है। मेरे 2 सवाल है, एक संजय से, एक साथ से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पॉलिटिशियंस के लिए मेन स्ट्रीम में या स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत से जोक्स बनते हैं। कब ऐसा वक्त आएगा जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे या सोशल मीडिया पे तो खैर होती है, आर्मी या जनरल के लिए जोक्स बनेंगे? अच्छा, संजय से मेरा सवाल ये है, जो कल वाला वाक़या हुआ, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, ये इंडियन और पाकिस्तानी उनमें एक हिपोक्रेसी या मुनाफिकत होती है कि अगर आप कल गांधी के बारे में कुछ कहते तो ऑडियंस शायद हंसती, लेकिन जब आपने कायद आज़म के बारे में कहा तो उनको गुस्सा आया। क्या ये वेस्ट में भी ऐसा है कि आप जब अमेरिकन के बारे में कहेंगे तो अमेरिकन को गुस्सा आएगा, या सिर्फ ये हम में ये खासियत है? Sanjay, you want to switch questions? No, go ahead. Saad lives in America. I would know better because I used to live, but I came back to this jungle. So इंडिया में जनरल नहीं होते ना? इंडिया में जनरल नहीं होते। नहीं, इंडिया में सर जर्नल तो हैं लेकिन औकात में हैं। औकात में। बात ये है ना जी, कल मैंने, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो कल मैंने गांधी को भी बोला था, कल मैंने गांधी को भी बहुत बोला था। और जिन्ना साहब के बारे में तो मैंने खाली एक छोटी सी बात कही थी कि यार आप बोल रहे हैं कि मैं ना मुसलमानों के लिए मुल्क बना रहा हूँ और फिर वो सेकुलर रहेगा, तो वो तो थोड़ा ऑक्सीमोरॉनिक है ना। इट्स लाइक हैप्पी मैरिज है ना, तो वो तो नहीं हो सकता ना। इट्स लाइक इंडिया सडनली डिसाइड्स कि हम ना वेजिटेरियंस के लिए मुल्क बना रहे हैं, इसमें जो जिसको जो खाना वो खा सकता है। अच्छा, तो ये तो हंसने वाली बात ही है। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू से दैट वी हैव टू, हम एज अ कॉम वी हैव टू री एग्जामिन आवर हीरोज, वी हैव टू री एग्जामिन एवरीबडी दैट वी, जो हमको बोलते हैं कि रिस्पेक्ट, बिकॉज रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्न एंड री एग्जामिनिंग इट्स अ साइन ऑफ एन इवॉल्व्ड सोसाइटी जो अपने हीरोज को री एग्जामिन करती है। और अब जो अमेरिका की बात आपने करी ना जनाब, कि अमेरिका में अगर इतना सेंस ऑफ ह्यूमर होता तो डोनाल्ड ट्रंप तो इलेक्शन लड़ता ही नहीं सर। हमने तो अपना डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट कर लिया है जी, अब अमेरिका का वेट कर रहे हैं हम। अच्छा, हिलरी क्लिंटन के बारे में? ओह माय गॉड सर आप कौन सा टीवी चैनल देखते हो? ये CNN, BNN। नहीं एक मिनट सर, क्या हिलरी क्लिंटन के बारे में क्या बात करनी है आपने? मैं, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उसको जाती तौर पे जानता हूँ यार। सर मैं औरतों की बर्नी सैंडर्स को नहीं देखा फिर? नहीं, मैं औरतों की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनकी स्कर्ट नहीं देखता, उनकी अक्ल देखता हूँ सर। ये आपने बड़ी मोनिका लुविंस्की बात की है अभी आपने। वो खुद ही सवाल पूछते हैं, कोई ताली बजा देते हैं। चलें नेक्स्ट। Oh, really? We're on that question. Okay. हाँ, देखिए मेरे पास इंडियन वीजा भी नहीं है, तो फिर I would just say that, you know, whenever you start cracking jokes about the army, the plot thickens. So yeah, but I mean, if there's anything specific, I don't know, because honestly, I do talk about it. I used to talk about it a lot before, but the idea is that until now, I'll be very honest, half the people laugh, half don't. So it's about it, you know. We're in a society where it's about it's about and like our esteemed audience member said, it's about, do you cater to your audience and what they want to talk about and what they want to do. Oh, Ziaul Haq jokes everyone cracks, you know. That's. अरे मुझे सर साहब मुझे ना वो इमरान असलम साहब बता रहे थे जियो के, कि जब जिया के टाइम पे उन्होंने अपने, जिया साहब वहाँ गए थे जेद्दा, तो उन्होंने हेडलाइन डाली थी कि हक ऑफ टू जेद्दा। So
सी द थिंग इज फौज, देखें आप, फौज का जो लॉजिक है वो सिंपल सा है कि आपने ना मारना है और आपने उसको मारना है जिससे आपकी जाति कोई दुश्मनी है ही नहीं। जाति दुश्मनी हो तो फिर भी बंदा मर्डर को जस्टिफाई कर सकता है, मुझे गुस्सा आ गया। आपने उस बंदे को जाके मारना है जिससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है जी कि जब बंदे को फौज में भर्ती करते हैं तो उसकी अकल ले लेते हैं, उसको बंदूक दे देते हैं, और जब वो फौज छोड़ता है तो उससे बंदूक भी ले लेते हैं। By the way, we're also recording. Whoever laughed right now, you're in trouble, by the way. I'm sorry. They're recording this from back there, so it's not my fault. Okay. Next question है, इनसे पूछे इनका favorite color क्या है? Oh, there's one there. There's some. Where? मेरा संजय साहब से सवाल है। Oh, there. अच्छा संजय साहब, यहाँ पे तो खैर अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर को जब डिबेट में ला रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली यही एलीट क्लास मोस्टली जो है वो फौज को भी सपोर्ट करती है और स्टेट को, नैरेटिव को भी, ठीक है। अच्छा मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये है कि जैसे पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है फ़ौज के ऊपर भी जो तंज करना या उसके ऊपर मामूली सी भी बात करना। आपके स्टेट में आपके ख्याल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जब आप उसके ऊपर जोक करते हैं तो फिर मसला हो जाता है? सर मैं बताता हूँ ना कि ये आप एज नहीं, गाय तो खाते हैं, मैं तो खा रहा हूँ यार इधर आके। नहीं सर ये RSS, हाँ मतलब वो खुद भी खाते हैं साले। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ बाय द वे इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। यार तुम सबको पिस ऑफ करोगे, कहाँ जाओगे फिर तुम? सर मैं देखो बोलते तो बोल रहे हैं ना कि सबको पाकिस्तान भेज देंगे, सबको पाकिस्तान। अच्छा ठीक, तुम पे आ गए फिर तो। अब तो हमने अदनान सामी को भी उधर रख लिया है। हाँ इतनी सारी जगह खाली होगी यहाँ पे तो हम नहीं, टू आंसर योर क्वेश्चन सर, आई थिंक यू नो it's an invalid question, you know, because yes, of course, I have a problem with the elites. I have a problem because they all आर्मचेयर फिलोसफर्स और आर्मचेयर पॉलिटिशियन सभी के सभी हैं, मगर हमारी कौम इस तरह की है ना कि सर आप किसी और को छोड़ो, अपने बाप पे मजाक नहीं कर सकता कोई, हम अपने माँ बाप का मजाक नहीं उड़ा सकते, तो बाहर किसी का जाके क्या उड़ाएंगे। हमारे यहाँ ये हालत है कि हमने घर के, मैं कल भी बोला था, अपने घर के करप्शन को हम सर पर उठा के घूमते हैं, लेकिन और बाहर जाके शोर मचाते हैं कि ये मोदी ये है या शरीफ ये है या गरीब ये है, हम बोलने लग जाते हैं। लेकिन अपने घर में जो करप्शन हो रहा है, जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कि फेसबुक पे लोग फादर्स डे पे लिख देते हैं कि हैड द बेस्ट लंच विद द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, द ग्रेटेस्ट डिनर विद द ग्रेटेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, है सबका ही बाप बेस्ट और ग्रेट है यार, तू गंद किसका बाप मचा रहा है? बट फैमिली इज लाइक होली काउ, यू कैन नॉट क्वेश्चन योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट, आई कांट गो अगेंस्ट माय डैड, व्हाई? अकल नहीं है तेरे पास क्या? क्या हमारे वो रिस्पेक्ट का कल्चर है ना, वो एक्सटेंड होता है, पहले तो माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, नेशन की करो, रिलीजन की करो, फिर कोई भी एरा गैरा बाबा मौलवी को या तो उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाओ यार। हम तो रिस्पेक्ट करते करते बूढ़े हो जाते हैं। तो ये कहना कि कौन सा टॉपिक ऑफ लिमिट है, ऑफ लिमिट तो सर हमारे घर में ही है। मेरे बाप को आज तक ये मालूम नहीं है मैं करता क्यों, अगर मालूम पड़ जाए, मैं आई एम 43, वो आज भी चमाट धर देगा मेरे। Sir, state by nature, any state in the world, by nature is oppressive. It is, and democracy is a garb. It's a nonsensical concept which is क्या democracy में क्या है ना, सबको सोने की थाली में खाने का हक है, लेकिन सबके पास सोने की थाली होनी भी तो चाहिए ना। Yeah, absolutely. And we don't make fun of the army over here, but I live in the US a lot. They don't make fun of the army there as well. It's a taboo subject. Maybe they could, but they don't. So it goes from state to state. नहीं सर, आर्मी जब कुछ करती नहीं तो उसका मजाक क्या करें यार। अब मेरे को बताओ, पठानकोट में 4-5 लड़के आए, ये पता करने में 7 दिन लग गए, कहाँ से आए थे, मतलब मुझे नहीं पता किधर से आए थे, उसमें 7 दिन लग गए। और उसके बाद वो जो बंदा खुदकुश हमलावर उसको बोल रहे हैं, खुद ही मरने आया, उसको मरने में 7 दिन लगते हैं, मतलब उसको तो हमने लीज दे दी ना, फिर हफ्ते में तो इस आर्मी का क्या मजाक, वो कुछ करते ही नहीं है। अगर कुछ करें सड़क पे आए बाहर तो फिर मजाक भी बने। बट ये है कि जिस सोसाइटी ने, जिस भी कौम ने हंसना और मजाक बनाना छोड़ दिया, मतलब वो उसके आखिरी दिन चल रहे हैं जी। अच्छा ओके संजय यार, ये कबूतरों वाला चक्कर गया था। ये कबूतर, तुमने हमारे कबूतरों का पकड़ लिया। कबूतर आया था ना हमारे मैसेज के साथ। कबूतर आता मुझे पता नहीं सर, मुझे तो ये पता आपके यहाँ से गुब्बारा आया था अभी। अच्छा अच्छा, आपको पता नहीं है गुब्बारा आया था एक उड़ के पाकिस्तान से, हैप्पी बर्थडे लिख के। अच्छा, उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया जी, ये गुब्बारा आया पाकिस्तान से।
उस पे We've got- सुखोई ने ना 97 फायर करें उस गुब्बारे पे गिराने के लिए. Achha, so they have guaras, we have kabutars. We're technologically more advanced. Yeah. Okay, we've got 15 minutes. अच्छा, हाँ, Any वो more कबूतर, questions? हाँ, आप समझा मैं. Oh my God, it's Bill Clinton, he's back. चलें जी, पूछें. सर बिल्कुल करते हैं, लेकिन इंडिया में तो मैं एक बात बोले ना, हम लोग वो लोग हैं, और ये इंडिया को ऐसे मत बोलो आपके पता नहीं कहाँ पे कोई बना हुआ है, बगल में ही है. हम लोग वो है ना कि एनीथिंग विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटस को वी विल नॉट रेस्पेक्ट दैट. हैं मर्द खास तौर पे, उनको औरत को देख के लगता है ये चीज़ क्या है, तो वो उसी की रिस्पेक्ट नहीं करते. ट्रांसजेंडर तो आप कहाँ पे जा रहे हैं यार, किधर की बातें कर रहे हैं. हम लोगों को तमीज़ ही नहीं है ना. हम लोगों को आज इंडिया में मुहिम चल रही है कि जब रिसेंटली बहुत ज़्यादा रेप इंसिडेंट्स होने लग गए, तो इंडिया में मुहिम चली, गवर्नमेंट ने चलाई कि सडनली दे डिसाइडेड दैट वी विल रिस्पेक्ट वीमेन. और उन्होंने उसके लिए नई नई कारस्तानियाँ शुरू कर दी. पीछे गाड़ी के पीछे लिख दिया कि दिस टैक्सी रिस्पेक्ट्स वीमेन. हमने कभी एज अ सोसाइटी, मैं दोनों मुल्कों की बात कर रहा हूँ, हमने कभी नारेबाजी सुनी है ठीक से? वो तो गोरा ही था जो 1942 में सुन के चला गया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, वो सीरियसली लेके चला गया. हमारे यहाँ नारेबाजी थोड़ी होती है यार. हमारे यहाँ नारे कोई सुनता है? हमारे मेरे ख्याल इंडिया में जो एक नारा, सबसे आखिरी नारा जो हमने सीरियसली लिया था, वो यही था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो. उसको हमने बड़ा सीरियसली ले लिया. उसके बाद, उससे पहले 1970s में गवर्नमेंट ने बोला था हम दो हमारे दो. किसी ने नहीं सुना. 135 करोड़ हो गए. तो अभी नारेबाजी से जब आप ट्रांसजेंडर्स की बात करते हो, सर ये तो बहुत बात की बात है. हम तो आज तक ये कहते हैं कि मंगलवार को अंडा नहीं खाएंगे. तो आप तो बात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेवल पे जाके कर रहे हो सर. क्वांटम मैकेनिक्स पे पहुंच गए आप सर. हम तो अभी तक ये नहीं डिसाइड कर रहे अंडा खाएं कब. हाँ जी. I just have a simple question. First of all, if I could, comedy is all around, as you already mentioned. If we could get a glimpse of what your creative process is. I mean, this is raw comedy. How do you get it onto paper into a joke, or how do you create that joke from what's around you? And the second part, when do you know to stop pushing the envelope? As comedy needs to mirror what's around yourself, but how do you know, okay, I pushed the envelope here, if I push it a little more, it'll just fall off the edge. When is it that you know, all right, I got to stop right here? Okay. Just wondering. Well, I think just like Sanjay was saying before, comedy kind of comes from all around you. So you do look to your life experiences a lot, you know, for comedy. I'm sure this gentleman will be part of a bit sooner or later from me or Sanjay. You know, it's I know laughter is the best medicine, but for you, sir, Xanax maybe is a better option. So you really look around it, and a lot of it is very boring. It's sitting in front of your laptop and kind of making sure, and a lot of it is what angers you, what upsets you. As you can see, you can see part of Sanjay's process as he's going through it. You know, it's what upsets him. He's very passionate about his comedy to a point where he doesn't even want to call it comedy. So it's this, and so he'll push it. I think that Sanjay will push it all the way. Sanjay will push it so far it'll fall off the table, it'll go into the dustbin, and he'll kick the dustbin out the window. And you know, so it depends on how far you're willing to push it. But you know, it depends. Like you push the boundaries as far as that cricket match will take you, and you hope you hit the 6 outside. How do you know it's far enough? When you get comments on YouTube, baby is dead, you're dead. When you get comments, die. मैं आपसे सर ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलॉप को कितना पुश करना है. इसका मैं एक जवाब देता हूँ. माय ग्रैंडफादर वाज अ फ्रीडम फाइटर. उसको काले पानी की सजा भी हुई थी. Which freedom though? Which side? सर वो तो जो पहले लड़ाई थी ना, अभी तो चल रही है हमारी. हाँ, अभी भी चल रही है. अब तो चल रही है. पहले गोरे थे, अब काले पीले हैं. अच्छा. एक दफ़ा सर, अभी एनवलप की बात करना कितना पुश करना है. एक दफ़ा गुलाम हो चुके हैं, दोबारा नहीं होना. और आप एनवलप पुश नहीं करोगे तो आप, मैं मान लें आप मेरी बात को, आप कहीं ना कहीं गुलाम हैं. जितनी भी वर्ल्ड सोसाइटीज़ हैं उसमें ये जहन की गुलामी ये नहीं है जहाँ पे लोगों को ये सोचना पड़े कि मुझे कहाँ पे रुकना है. क्योंकि जिसने जो हम तो मजाक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं. हमारे यहाँ तो कोई बच्चों को मारने में नहीं रुकता है यार. कभी APS में घुस जाते हैं, कभी बच्चा खान यूनिवर्सिटी में घुस जाते हैं. फिर भी इमरान खान बोलता रहता है गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड तालिबान बैड तालिबान.
यार, there is a difference between Taliban and cholesterol. So, our societies are so ripe for comedy right now. और हमारा तो ट्रेडिशन रहा है सटायर का यार. मोइन अख्तर साहब के तो हम हाथ जोड़ते हैं, उनके जब जिया के टाइम पे उन्होंने जो किया उनके तो हम हाथ जोड़ते हैं जी कि ये नजरिया, ये हरकत हमारे अंदर आ जाए किस तरीके से. हमारा तो ट्रेडिशन रहा है सटायर का जी. और अब हमारी सोसाइटी इतनी राइप है कि अगर हमने, हमारे पास एक ही चारा बचा है कि भाई अब हंस लो. अगर हमने हंसना भी छोड़ दिया तो भी वो लाफ्टर इज अ मेडिसिन की जगह हम कोई और मेडिसिन खा के आराम से सो जाएंगे. It also depends if you're talking about, drugs or sex or alcohol, any of Nadim's favorite topics. It depends on how much it is. Please. जी जी जोड़े मेरा नहीं बना जी अभी तक. दर्जी लोग वो जमीन पे सलवार सील रहे होते हैं सर. यार ये बहुत. हेलो. यस करेक्ट सर. ये तो you do. Absolutely sir. Any more questions? हेलो. हियर. जी. ओके संजय साहब, आपने पूछा था कि कश्मीर दे देंगे तो वापसी क्या दोगे. यार हमारे 4 फास्ट बॉलर ले लो, अच्छा सौदा है. अभी भी कह रहा हूँ. 4 फास्ट. किधर से बोल रहे हो यार. एक 4 फास्ट बॉलर्स माइनस प्रेजेंट टाइम. बहुत देर बाद माइक मिला. सवाल आपने काफी देर पहले कह रहा था कि यार आप लोग आशीष नेहरा को कब्र से वापसी लाना पड़ रहा है. अभी ले लो 4 फास्ट बॉलर, सौदा कर लो. सीधी सी बात है. वर्ल्ड कप भी आ रहा है. नहीं यार मेरी बात तो सुन लो ना. फास्ट बॉलर तो हम ले लेंगे, आपके तो लाइन के आगे पैर डालते हैं ना. भाई ठीक है, कोई बात नहीं. भाई कम से कम तेज तो करवाते हैं ना. तो तेज का मैंने अचार डालना है, सिर पे जाके बॉल मारनी है मैंने उसके. तो फिर क्या है. नहीं मैंने नदीम साहब भी बैठे, जरा क्रिकेट पे भी गुफ्तगू हो जाए कि भाई विराट की क्या गिज़ा है इंडिया के अंदर. सब तो वेज खाते हैं, लगता है यही आखिरी आपका बीफ खाने वाला रह गया है. कर दी ना आपने वो फजल की बात के बीफ खाने से छक्के लगते हैं. ये सर देखे ये नैरेटिव है ना कि आकिब जावेद भी बोल रहा था एक दिन. कहता है कि यार हम तो गोश्त खाते हैं ना इसलिए हम तेज फेंकते. पहले तो आकिब जावेद तेज तो फेंकता ही नहीं था, घुमाता था इधर उधर को थोड़ा सा. अभी इसने 7 विकेटें ली नहीं इंडिया के खिलाफ ना. हाँ? शारजा में इंडिया के खिलाफ 7 विकेटें ली थी सचिन तेंदुलकर को. सर वो रात में ली थी. यार तुम दोनों कश्मीर है ना, रेस्ट भी ले लो भाई. अभी थोड़ा सा रेस्ट भी ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कश्मीर ले लो, कोक स्टूडियो दे दो. The sponsor of KLF this evening, Coke. And, Okay, and by default, last 2 questions. yes, please keep it light. We're not trying to solve the crises of the world. Army, beef. There's one person waving like crazy over here. Yes, just stand up and tell us your question, ma'am. This young girl right here. Finally. Finally. That's what Sanjay said when he got the visa. Okay, thank you. So I wanted to ask every comedian for so long. We know कि हम stereotypes को बहुत use करते हैं and we cash on them a lot, literally cash on them. And we know, and we talk about context, how some people understand jokes in some context and some don't, right? But even if we talk about one context, हम पाकिस्तानी context में ही बात कर रहे हैं या Indian context में ही बात कर रहे हैं, तो पठान जोक पे और सरदार जोक पे हर कोई हंसेगा. I want to ask you, where do you draw the line between a joke and not a joke? And if there is a line, and secondly, if you think that joking about such things normalizes such things in their benefit or young को और नुकसान करते हैं. You want to go? Nadeem, No, I was just talking about a lot of lines over here. जहाँ तो बची ही नहीं है. Automatic लग रहा है सर, ज्योमेट्री हो गई, लाइन ही लाइन खींची जा रही है. So basically, I think that that's a great question. I think that when your joke is tackling that stereotype, that's when you know that you're doing the right thing for the right reason. So if you have a joke, if you have a Pathan joke or this joke or that joke, like I have this Urdu speaking joke, which I do. I mean, I have a few because I'm Urdu speaking, like half Urdu speaking myself, so I can do those jokes. So basically, I have this joke where it's about people who chew pan.
You know, and I talk about that, like it's hard to talk to someone who chews pan. It's not that they don't want to talk to you, it's literally hard to talk to them like, what are you saying? What do they sound out like when they're not chewing pan? Definitely from 1942. Definitely. And you don't mean to make fun of that certain community, but the idea is that chewing pan is wrong, and I think that that's a social wrong according to what I think, and that's a stereotype that I would tackle. You get it? Okay. I think this is something that I really want to emphasize on, that you know, everything, कोई भी होली काव नहीं है, everything can be made fun of, you know. लेकिन एक मसला है इसमें, आप जैसे रेप का जोक नहीं बना सकते यार. अगर आप देखें जैसे इस तरह के ब्राज़ील और उसका जर्मनी का मैच हुआ वर्ल्ड कप में, 7-2 से ब्राज़ील हार गई, किसी ने लिख दिया कि जर्मनी रेप्ड ब्राज़ील. उनको अंदाज़ा है आप क्या बात कर रहे हैं, कि इसका मतलब क्या था, कि विक्टिम से पूछें. आप अगर रेप का मजाक करना चाहते हैं तो आप जो परपरेटर है उसका मजाक बनाएं, विक्टिम का नहीं. आप अगर जेनोसाइड का मजाक बनाना चाहते हैं ना, तो जो विक्टिम है उसका नहीं, जो कर रहा है उसका बनाएं. क्योंकि अगर आप विक्टिम का बना रहे हैं तो आपको पता है कि आप, जैसे मैं कई दफ़ा बोलता हूँ, मुहाजिर यहाँ पे जितने भी मुहाजिर यहाँ पे मिलते हैं वो बोलते हैं हमारी तो बड़ी हवेलियाँ थी वहाँ पे, कोई गरीब नहीं है. Now this is funny, right? But I am making fun of the victim. जो बंदा डिस्प्लेस हुआ है, जिसका से सब कुछ चला गया, मैं उसका मजाक बना रहा हूँ. आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है. जिस हालात में वो भागा, जिसने भगाया, जिसने किया, उसका मजाक बना के दिखाओ ना यहाँ पे, तब आप हंसें आप उसके ऊपर. One last question. Guys, yeah. The question I want to ask is like as comedians, आप लोगों को भी किसी ने कहा होगा कि अगर इसका मजाक उड़ाना है तो इंडिया जाके क्यों नहीं रह के, इसका मजाक उड़ाना है पाकिस्तान जाके क्यों रह के. And I've never really understood that mentality कि क्या उसका होना चाहिए. And everyone kind of supposes that you kind of just need to beg for one team, like आप दोनों का कभी भी साथ नहीं दे सकते. So I just want to comment on that कि किस तरह से डायकोटमी बनाई जाके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, and how you can use comedy to actually break that wall. No, I think that you're always batting for your own team, you know, which is literally the team of one. A lot of times as a Pakistani, I make fun of Pakistan because, and you know, obviously, you know, in the grand scheme of things, if you look at it, no, you should be patriotic, you shouldn't make fun of Pakistan, but you do, because you're trying to talk about whatever's going on in your country. As far as India is concerned, I'll make fun of India because it's not where I'm from. So you're not trying to be politically correct when you're doing comedy. You're saying that, look, this is what is wrong with the world or with whatever's going on, and you wouldn't shy away from something that's making fun. I wouldn't shy away of making fun of Sanjay. You know, I wouldn't shy away of it. We're meeting after this. Yeah, we'll meet after this. You know, like ideally, like if he made fun of me, I wouldn't take it personally, because I know that's his job. His job is to make fun of people, and the amount he said about the army, he's not going to get a visa next year anyway, so it's okay. No, I'm just kidding. We will make sure that he comes, and it's about pushing those boundaries. So whenever he says something, whenever I say something, it's about pushing those boundaries. And Sanjay, you can take over. I think that the fact that you make fun of something, whether it's the establishment, it's your family, it's your parent, doesn't mean that you don't love them. हमारे यहाँ मजाक बनाने को आप सीधा डिसएग्रीमेंट को सीधा बोलते हैं, खिलाफत है वो. लेकिन आप अपने बाप का मजाक बना रहे हैं, अपने मुल्क का बना रहे हैं, अपने जो रिलीजन का मजाक बना रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि देखो मैं तो रिलीजियस हूँ नहीं, मैं पेट्रियोटिक भी नहीं हूँ, मैं तो फैमिली बंदा भी नहीं हूँ. बट अगर आप इनका मजाक बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप इनको आपने डिसोन ही कर दिया है और आप इनसे मोहब्बत नहीं करते हैं. आप बनाएं, मजाक बनाएं, तो सबसे बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अपने बाप का मजाक बनाएं, अपने मुल्क का बनाएं, अपने रिलीजन का बनाएं. तो ये एक तरीका है जो जिससे लोग, हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि आप इसका मजाक बुरा मान के लोग उसका मजाक बनाते. मजाक बनाओ यार, सबका बनाओ, सबसे पहले अपने माँ बाप का बनाओ. Okay, thank you. And in the end, I'd like to shamelessly plug my book. It's available at Hajweri Publications. Yay! And ladies and gentlemen, like a big round of applause for Nadeem Farooq Paracha. He's been doing this for years. He's writing comedy when we were still in our undies. He's the man. Thank you. Thank you. Sorry? Oh, and it's his birthday today, ladies and gentlemen. Give a big round of applause. May you not go any undue pasi. Yeah. Okay. And happy birthday to Nadeem. And then please a big round of applause to Sanjay. Thank you. For visiting.
Thank you very much. Thank you. Thank you, Saad, and thank you, Sanjay. And now get out.